Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Student, we were reading chapter 4, Pianist Mutton of our English Literature book as disaster. In our last video, our topics were demonstrative and next beautiful forwards and last favorite artist. So student, included these topics, we have read and solve exercise C. Fill in the blanks with this, that, these or those. Which is page number 45 in our English Literature book as disaster in our last video. And student, we have also read and solved exercise A and B, which is page number 46 in our English Literature book as we discussed in our last video. So student, we have finished this topic demonstrative in our last video, and since today's our topic is biography, and included this topic biography, we will read a biography of a famous person M.S. Subbulakshmi in our today's class. Okay, and after student, we will read and solve exercise O, answer this question of this chapter 4 in our Fair English Literature notebook in our today's class. Okay, so all students please partial listener class and listen to my words clearly, because today we are going to read a biography of M.S. Subbulakshmi. Okay, all students look at the page number 46. Okay, students, the meaning of biography is जीवनी. Okay, biography का mean होता है जीवनी. Okay, read a short biography on acclaimed Carnatic singer M.S. Subbulakshmi. Okay, it's mean here the read means पढ़ी, a short means एक छोटी, एक लघु, biography means जीवनी. ओके, एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के बारे में उसकी लाइफ की कुछ इंसाइडेंट के बारे में राइट डाउन करता है तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी, जीवनी. ओके, ऑन अक्लैम, हियर द मीनिंग ऑफ अक्लैम मीन्स प्रशंसित. ओके, कर्नाटक सिंगर, कर्नाटक की सिंगर है M.S. सुब्बुलक्ष्मी. ओके, इट्स मीन कि प्रशंसित कर्नाटक M.S. सुब्बुलक्ष्मी की एक लघु जीवनी पढ़िए. ओके, सो लेट्स रीड अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑन अक्लैम्ड कर्नाटक सिंगर M.S. सुब्बुलक्ष्मी. Okay, M.S. Madhuri Shanmukha Subbulakshmi was an Indian Carnatic singer who was born in Madurai, Tamil Nadu on 16 September 1916. Okay, तो M.S. Madurai Shanmukha Subbulakshmi भारतीय कर्नाटक गायिका थी. ओके, और इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै में हुआ था. ओके, मदुरै तमिलनाडु में हुआ था. ओके, so let's see next. So Subbulakshmi was a leading exponent in classical South Indian Carnatic music. Okay, so Subbulakshmi जो थी, ओके, सुब्बुलक्ष्मी शास्त्रीय दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में एक प्रमुख प्रतिपादक थी. ओके, and she began learning Carnatic music at a young age and underwent training under Saman Gudi Srinivas Lai. Okay, so students, इन्होंने कम उम्र में कर्नाटक संगीत सीखना शुरू कर दिया. ओके, और बहुत ही कम एज थी जब इन्होंने कर्नाटक के संगीत को सीखना शुरू कर दिया था. ओके, एंड और सेमुगुड़ी श्रीनिवास लियर के तहत प्रशिक्षण लिया था इन्होंने सैमन गुडी श्रीनिवास के तहत. ओके, शी वाज आल्सो ट्रेन्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक अंडर पंडित नारायण राव व्यास. ओके, तो इन्होंने नारायण राव व्यास के तहत हिंदुस्तानी संगीत में भी प्रशिक्षण लिया था. ओके, प्रशिक्षण लिया था. एंड आफ्टर स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट. शी गैव हर फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस इन तिरुचिरापल्ली इन 1927 व्हेन शी वाज जस्ट 11 years old. ओके, तो स्टूडेंट, जब ये बहुत इनकी कम एज थी, इन्होंने अपना पहला लाइव प्रदर्शन, पहला लाइव परफॉर्मेंस इन्होंने 1927 में 1927 में तिरुचिरापल्ली में दिया था. ओके, जब वह सिर्फ 11 years old की थी, सिर्फ 11 साल की थी. ओके, सुब्बुलक्ष्मी मेड हर डेब्यूट इन फिल्म्स इन 1938 विद द तमिल फिल्म. ओके, एंड द नेम ऑफ दिस तमिल फिल्म इज सेवा सदन. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने 17 साल तक की इन्होंने she was 17, she was giving solo performance. Okay, by the time she was 17 she was giving solo performance. Okay, तो जब इन्होंने तिरुचिरापल्ली में जब अपना लाइव प्रदर्शन दिया था, लाइव परफॉर्मेंस दिया था 1927 में, इसके बाद 17 साल की उम्र तक इन्होंने एकल प्रदर्शन दिया था. ओके, 17 साल की उम्र तक ये एकल प्रदर्शन दे रही थी. ओके, एंड सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्मों में अपनी शुरुआत 1938 में तमिल फिल्म सेवा सदन से की थी. ओके, इन्होंने अपनी फिल्मी एरिया में अपनी एंट्री की थी तमिल फिल्म से सेवा सदन. ओके, सो स्टूडेंट, टर्न योर पेज फॉरवर्ड, लुक एट द पेज नंबर 47. ओके, एंड लेट्स नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस बायोग्राफी. शी acted in several critically successful
Tamil films in the last decade. In 1940, she married the famous journalist Kalki Sadasivam, founder of the पॉपुलर तमिल मैगजीन कल्कि. ओके, सो स्टूडेंट्स जब इन्होंने 17 ईयर की ओल्ड, जब इनकी सिर्फ 17 ईयर की थी, ओके 17 साल की उम्र तक इन्होंने एकल प्रदर्शन दे रही थी. और सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी 1918 में, ओके 1938 में, ओके 1938 में तमिल फिल्म सेवा सदन से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी. ओके, एंड इन्होंने अगले दशक में कई गंभीर रूप से सफल तमिल फिल्मों में अभिनय किया. ओके 1940 में, ओके 1940 में उन्होंने प्रसिद्ध पत्रकार कल्कि सदाशिवम, लोकप्रिय तमिल पत्रिकाओं कल्कि के संस्थापक थे, जो उनसे शादी कर ली. ओके, तो ये जो सुब्बुलक्ष्मी थी, ओके तो इन्होंने क्या किया कि एक जो लोकप्रिय तमिल पत्रिकाओं कल्कि के जो संस्थापक थे उनसे इन्होंने मैरिज किया. उनका नाम था सदाशिवम. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एंड ऑफ दिस बायोग्राफी. सुब्बुलक्ष्मी वेंट ऑन टू हैव अ prolific career in Carnatic music and has performed in major cities all over the world. ओके, तो जो स्टूडेंट सुब्बुलक्ष्मी है, तो सुब्बुलक्ष्मी ने अपने करियर की, ओके सुब्बुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत में एक शानदार करियर बनाया और दुनिया भर के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन किया. ओके, एंड हर angelic voice was garnered fans all over the world, including famous figures such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu and Ghulam Ali Khan. ओके, तो इन्होंने इनकी जो एंगालिक आवाज़ ने, ओके उनकी एंगालिक आवाज़ ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और गुलाम अली खान जैसे प्रसिद्ध हस्तियों सहित दुनिया भर में प्रशंसकों को आकर्षित किया. ओके, तो बहुत सारे इनके प्रशंसक थे, इन्होंने इन सारे प्रशंसकों को आकर्षित किया. सुब्बुलक्ष्मी आल्सो वन सेवरल prestigious award thoughtful her illustrious career. ओके, सुब्बुलक्ष्मी ने अपने शानदार करियर के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते. ओके, शी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू विन द भारत रत्न अवार्ड एंड हैज आल्सो बीन हॉनर्ड विद द मैग्सेसे अवार्ड. वह भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली संगीतकार थी और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. ओके, तो ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी, फर्स्ट सिंगर थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था. ओके, और इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. MS, as she was fondly called by fans, okay, passed away on 11th December 2004. Okay, so student MS जैसा कि एज सी वॉज फाउंडली कॉल्ड बाई फैंस. ओके, तो जैसा कि उन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से बुलाया जाता था. ओके, तो इनके जो फैंस थे, इनके जो प्रशंसक थे, वो उन्हें प्यार से MS बुलाते थे. ओके, और तो स्टूडेंट जो MS थी, जैसे कि उन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से बुलाया जाता था, का निधन 11 दिसंबर 2004 को हुआ था. 2004 में इनकी डेथ हुई थी. हाउएवर हर इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक एंड हर नाइटिंगेल वॉइस will always remain intact. Okay, so students, हालांकि कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनका प्रभाव और उनकी कोकिला आवाज़ हमेशा बरकरार रहेगी. ओके, नाइटिंगेल वॉइस इट्स मीन कोकिला आवाज़. तो हालांकि कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनका प्रभाव और उनकी कोकिला आवाज़ हमेशा बरकरार रहेगी. बहुत ही फेमस सिंगर है सुब्बुलक्ष्मी, बहुत ही टैलेंटेड. ओके, so student, we have read this biography of Subbulakshmi and I hope you must have understood this biography. Okay, you have no problem in any line of this biography. Okay, now we are going to read the definition of a biography. A biography is usually made up of snippets of information recording the life of a famous person, including their childhood, important incident and events in their life, their achievement and their family. Okay, तो अब बायोग्राफी एक जीवनी. ओके, इज मीन्स है, यूजली मीन्स आमतौर पर. ओके, मेड अप मीन्स बनी ऑफ स्निप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग द लाइफ ऑफ अ फेमस पर्सन. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक जीवनी आमतौर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी के अंशों से बनी होती है. ओके, जानकारी के इंफॉर्मेशन के स्निप्स से बनी होती है, जानकारी के अंशों से बनी होती है, जिसमें उनके बचपन, ओके जिसमें उनके चाइल्डहुड, इट्स मीन उनके बचपन, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, इट्स मीन उनकी महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं, एंड इवेंट्स इन देयर लाइफ. ओके, और उनकी जीवन की घटनाएं हो गई, दियर अचीवमेंट्स हो गए, उनकी अचीवमेंट्स हो गए, एंड दियर फैमिली, और उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं. ओके, तो एक जीवनी आमतौर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी के अंशों से बनी होती है. ओके,
एंड जिनमें उनके बचपन, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और इवेंट्स में प्रतियोगिता या आयोजनों के बारे में एंड उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। क्लियर? एंड सो स्टूडेंट्स, एक बायोग्राफी में हम किसी फेमस पर्सन के चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में, ओके, उनकी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उनके इवेंट्स के बारे में, आयोजनों या प्रतियोगिताओं के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में एंड उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड डेफिनेशन ऑफ बायोग्राफी. लेट्स सी एक्सरसाइज. ओके, एंड इट्स योर exercise. Write a biography on any person you know. Okay, आपको write a short biography on any person you know. Okay, right means लिखिए, आ मीन्स एक, शॉर्ट मीन्स लघु, बायोग्राफी मीन्स जीवनी, ऑन एनी पर्सन किसी एक व्यक्ति पर, यू नो जिसे आप जानते हैं. राइट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑन एनी पर्सन यू नो. आपको एक बायोग्राफी राइट डाउन करनी, एक जीवनी राइट डाउन करनी है ऐसे पर्सन पे जिसे आप जानते हो. ऐसे व्यक्ति पे एक बायोग्राफी लिखिए, जीवनी लिखिए जिसे आप जानते हैं. ओके, यू कैन चूज अ फैमिली मेंबर, अ फ्रेंड, अ टीचर, अ कोच और एनीवन हु इज क्लोज टू यू एंड इंस्पायर्स यू इन लाइफ. ओके, तो यू कैन चूज, आप चुन सकते हैं अ फैमिली मेंबर, एक अपने परिवार के एक सदस्य को, अपनी मदर को, फादर को, ब्रदर एंड सिस्टर को. ओके, किसी को भी, अपने कोई भी फैमिली मेंबर को आप चूज कर सकते हैं. अ फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड को चूज कर सकते हैं. अ टीचर, एक अपने अध्यापक को चूज कर सकते हैं. अ कोच, ओके, एक कोच को, कोच मीन्स प्रशिक्षक. ओके, आप अपने एक प्रशिक्षक को चूज कर सकते हैं. और एनीवन, और किसी को भी, हु इज क्लोज टू यू. ओके, जो आपके करीब है एंड इंस्पायर्स यू इन लाइफ, और जीवन में प्रेरित करते. ओके, तो आपको एक शॉर्ट बायोग्राफी राइट डाउन करनी, आपको एक लघु जीवनी लिखनी है एक पर्सन पे, ऐसे पर्सन पे जिसको आप जानते हैं. ओके, और आप अपनी फैमिली मेंबर को ले सकते हैं, आप किसी भी अपने एक फैमिली मेंबर को ले सकते हैं, अपने फ्रेंड को ले सकते हैं, अपने टीचर को ले सकते हैं, अपने कोच को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं. किसी के ऊपर भी आप एक बायोग्राफी राइट डाउन कर सकते हैं जो आपके करीब हो, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो और जो आपको लाइफ में इंस्पायर करता, आपको आपके जीवन में प्रेरित करता. ओके, वो आपका टीचर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोच हो सकता है, anyone. Okay, so it's your today's class work. Okay, and students, now we are going to solve this exercise. Your exercise is answer this question. Okay, it's mean इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बायोग्राफी. व्हाट मीन्स क्या, इच मीन्स है, ए मीन्स एक, बायोग्राफी मीन्स जीवनी. व्हाट इज अ बायोग्राफी, एक जीवनी क्या है. योर फर्स्ट आंसर इज अ बायोग्राफी इज यूजली मेड अप ऑफ snips of information regarding the life of a famous person, including their childhood, important incidents and events in their life, achievements and their family. Okay, it's mean कि एक जीवनी आमतौर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी के अंशों से बनी होती है. ओके, एंड जिसमें उनके बचपन, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी प्रतियोगिताओं, ओके, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, एक जो बायोग्राफी होती है ना, तो एक जीवनी आमतौर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी के अंशों से बनी होती है, जिसमें उनके बचपन, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके आयोजनों या प्रतियोगिताओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं. So students, today's classwork is that note on this exercise or answer this question of this chapter 4 in your fair English literature notebook with your best handwriting. It's a today's classwork. And after students, write down a short biography on any person you know. You can choose a family member, a friend, a teacher, a coach or anyone who is close to you and inspire you in life. Okay, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये एक्सरसाइज आंसर दिस क्वेश्चन आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके, एंड आपका सेकंड वर्क ये है स्टूडेंट्स कि आपको एक शॉर्ट बायोग्राफी राइट डाउन करनी है. आपको एक लघु जीवनी लिखनी है एक ऐसे पर्सन पे जिसको आप जानते हैं, जो आपको इंस्पायर करता है, आपको प्रेरित करता है. वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोच हो सकता है, एनीवन. ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए एंड आफ्टर एक शॉर्ट बायोग्राफी राइट डाउन करिए. ओके, it's your today's class work and your homework is that learn exercise or answer this question of this chapter 4 from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. ओके, आपको एक्सरसाइज ओ का जो ओनली वन क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में आपको लर्न करना है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से. ये आपका होमवर्क. ओके, so students, I hope you must have understood your classwork and homework. So all students, firstly complete your classwork, note down exercise or answer this question of this chapter 4 in your fair English literature notebook, and after students, write down a short biography on any person you know and send me your work here. Thank you.